السلام علیکم ناظرین یہ سوار ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان بیچ ڈالا تھا اور دشمن کے اس زمین دوز حملے کی قیادت کر رہا تھا جو سیدھے سادے مسلمانوں کے عقیدے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ اسی علاقے کے کسی گوشے کا رہنے والا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ قوم کی آستین کا سانپ ہے۔ اس حملے میں وہ اکیلا نہیں تھا، یہ 8-10 مسلمانوں کا گروہ تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک اور آدمی مل گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوار سے پوچھا۔ ہے تو سب ٹھیک، سوار نے جواب دیا۔ کسی بھی وقت معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر صلیبیوں نے مجھے پکے سبق پڑھائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں۔ وہ کچھ بجھی بجھی اور خاموش نظر آتی ہے۔ آشی تو کہتے ہیں بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے، شاید سفر کی تھکن سے تیزی ماند پڑ گئی ہو، سوار نے کہا۔ وہ باتیں کرتے کرتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سوار اور ساتھی ان کے پاس رک گئے۔ بتایا کہ وہ سفر میں ہیں اور اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بزرگ اترا ہوا ہے، دن کے وقت بھی دائیں اور بائیں 2 مشلیں جلا کر رکھتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے اسے بلایا، وہ نہیں بولا۔ اس کے خیمے کے قریب سے زمین سے دھوئیں کا بادل اٹھا۔ بادل اوپر جا کر غائب ہو گیا اور اس میں سے ایک لڑکی نکلی جس کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر گئے۔ لڑکی نے کان بزرگ کے منہ کے ساتھ لگایا، بزرگ کے ہونٹ ہلے۔ لڑکی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہم ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین نے ہمیں پکڑ لیا۔ شاید لڑکی کی آنکھوں نے ہمیں جکڑ لیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ یہ خدا کا الچی ہے، تم سب کے لیے پیغام لایا ہے، اسے پریشان نہ کرو، کل لاؤ، اگر اس نے تم پر کرم کیا تو تم سب کو جلوہ دکھائے گا۔ ہم کچھ بھی نہیں بول سکے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر نور کا ہالا تھا۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔ ان کا لہجہ سنسنی خیز تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر حیرت اور خوف طاری ہے۔ انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ حیرت انگیز بات جذبات کو ہلا دیتی ہے، سنسنی سرور دیتی ہے۔ یہی حال ان دونوں سننے والوں کا ہوا۔ انہوں نے 2 گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر 2-3 آدمیوں کو بلا لیا اور جو انہوں نے سنا تھا وہ انہیں سنا دیا۔ سوار اور اس کے ساتھی نے دل پسند اور لذیذ سے اضافے بھی کر دیے۔ ان آدمیوں نے سوار اور اس کے ساتھی کو مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے گھروں کے آدمی بھی آ گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا جب اس گاؤں کے تمام آدمی سوار اور اس کے ساتھی کی رہنمائی میں اس جگہ کو روانہ ہو گئے جہاں عمر درویش اور آشی نے خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے سامنے چھوٹے سے قلین پر عمر درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا، آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک ڈنڈا اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف زمین پر گڑا ہوا تھا۔ اس کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ یہ مشلیں تھیں۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عمر درویش سے 8-10 قدم دور 3 آدمی کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ آئے تو ان تینوں کے پاس رک گئے۔ ان 3 میں سے ایک نے کہا، میں آگے جا کر بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ وہ 3-4 قدم آگے گیا تو یوں پیچھے کو پیٹھ کے بل گرا جیسے آگے سے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لوگوں میں جا کھڑا ہوا، خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف زدہ آواز میں کہا، آگے نہ جناب، مجھے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہے۔ دوسرے 2 نے کہا کہ ہم آگے جاتے ہیں، تم ڈر کر گر پڑے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے گئے۔ 3-4 قدم گئے تو دونوں پہلے آدمی کی طرح پیٹ کے بل گرے، جلدی سے اٹھے۔ لوگ ڈر گئے۔ خیمے سے ایک لڑکی نکلی، یہ آشی تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، تھوڑی اور منہ باریک پردے میں تھا، آنکھیں ننگی تھیں، سر سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ تم لوگ وہاں کھڑے رہو، آشی نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ بزرگ نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ ان 3 آدمیوں میں سے جو آگے گئے اور گر پڑے تھے، ایک آدمی بلند آواز سے بولا، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عمر درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کی غلام نہ ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ عمر درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ آشی دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمر درویش کے ہونٹ ہلے۔ آشی اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، بزرگ نے کہا ہے کہ آگ لگ جائے
तो इस खित्ते को तुम इस्लामी रियासत बना लोगे जो सूडान की गुलाम नहीं होगी। आशी ने कहा कि किसी के पास पानी हो तो इस कपड़े पर उंडेल दो। उमर दरवेश से ज़रा पर एक कपड़ा इस तरह पड़ा था जिस तरह किसी ने लिबास उतार कर गठड़ी की सूरत में रख दिए हो। उन्हीं 3 आदमियों में से जो आगे बढ़े और गिर पड़े थे, एक आगे बढ़ा। उसके हाथ में चमड़े का छोटा सा मशकीज़ा था। उसने कहा कि मेरे पास पानी है, मैं सफ़र में हूँ, इसलिए पानी साथ रखा हुआ है। उसने आगे जाकर मशकीज़े का मुंह खोला और कपड़े पर पानी का छिड़काव कर दिया। आशी ने ज़मीन से मशल उठाकर उमर दरवेश के हाथ में दे दी। उमर दरवेश ने आसमान की तरफ मुँह करके होंठ हिले जैसे सरगोशी की हो। फिर उसने मशल का शोला कपड़े के साथ लगा दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि पानी से भीगा हुआ कपड़ा जल उठेगा, मगर हुआ यूं कि जो ही मशल का शोला कपड़े के करीब गया तो कपड़ा भड़क उठा और तमाम तर कपड़ा एक शोला बन गया। कई एक आदमियों के मुंह से हैराज़दा आवाज़ें निकलीं। उनकी नज़रों के सामने पानी जल रहा था। खुदा के इशारे को समझ लो, उमर दरवेश ने कहा, और मुझे गौर से देखो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम में से हूँ। उसने अपने गांव का नाम लेकर कहा, मैं उसी इलाके का रहने वाला हाशिम दरवेश का बेटा हूँ। मैं नबी नहीं, मुझे खुदा ने रोशनी दिखाई और हुक्म दिया है कि रोशनी उनके पास ले जाओ जो अंधेरे में हैं। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था जैसे उस पर वजदानी कफियत तारी हो। उसने कहा, मेरे गांव में जाकर पूछो, मैं सलाहुद्दीन अयूबी का कमांडर हूँ। मैं उस फौज के साथ था जिसने सूडान पर हमला किया था। उस फौज का हमला नाकाम हुआ। हम सबको अफसोस हुआ, तुम सबको अफसोस हुआ होगा, लेकिन खुदा जुल जलाल ने मुझे मिस्र की फ़ौज की लाशों से उठाया और मुझे इशारा दिया कि सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज को शिकस्त क्यों हुई। मेरा अफसोस खुशी में बदल गया। एक रोशनी थी जैसे एक सितारा आसमान उतर कर दरख्त की शाखों में अटक गया हो। उस सितारे में से आवाज़ आई, आगे देख, पीछे देख, दाएं देख, बाएं देख। मैंने हर तरफ देखा। आवाज़ आई, कोई इंसान तुझे ज़िंदा नज़र आता है। मुझे हर तरफ लाशें नजर आईं। यह सब मेरे साथियों की लाशें थीं। हालत सबकी बहुत बुरी थी। जख्मी बहुत कम थे। ज़्यादा सिपाही प्यास से मरे थे। ये सब लड़े थे। सितारे की रोशनी से आवाज़ आई, क्या तूने देखा नहीं था कि तुम्हारी तलवारें कुंद हो गई थीं। तब मुझे याद आया कि मैंने सब कुछ देखा था जो रोशनी की सदा ने मुझे बताया था। मेरी तलवार की काट इतनी भी नहीं रही थी कि खराश भी डाल सकती। मैंने अपने तीर देखे थे जो हवा में यूं जाते थे जैसे हवा के झोंकों से खुश घास के तिनके उड़ रहे हों। हमारे घोड़े चलते नहीं थे। रेगजार ने सूरज की सारी आग ले ली और मुझे और मेरे साथियों को भस्म कर दिया। मैं भी जली हुई लाश था। आवाज़ आई कि वो तलवार कुंद हो जाती है जिसका वार अपनी माँ पर किया जाता है। तो नहीं जानता कि माँ कौन है। वो सरजमीन जिसने तुझे जन्म दिया है और जिसकी मिट्टी में तू खेल कर जवान हुआ है, तेरी माँ है। जाओ सूडान के मुसलमानों से कहे कि सूडान की ज़मीन तुम्हारी माँ है, उससे मोहब्बत करो। उसकी मिट्टी में जन्नत है। उस जन्नत को फतह करने के लिए बाहर का कोई मुसलमान भी आएगा तो वो दोज़ख में जाएगा। ऐ बरगुज़ीदा हंसी, एक आदमी ने कहा, क्या तू ये कह रहा है कि हम सूडान के उस बादशाह के वफादार हो जाएं जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता। ये आदमी उन तीनों में से एक था जो आगे बढ़े और गिर पड़े थे। ये बादशाह जो काफिर है मुसलमान हो जाएगा। उमर दरवेश ने झूमती हुई असर अंगेज आवाज़ में कहा, वो मुसलमानों की राह देख रहा है, उसकी फ़ौज काफिरों की है। तुम सब जाओ, तलवारें, बर्छियाँ, तीरों, कमान लेकर जाओ, ऊँटों और घोड़ों पर सवार होकर जाओ। उसे बताओ कि तुम उसके मुहाफ़िज़ हो, तुम सूडान के बेटे हो। फिर रोशनी से आवाज़ आई, अगर तेरी आवाज़ को लोग बातिल जाने तो उन्हें रात को अपने पास बुलाना, मैं उन्हें जलवा दिखाऊंगा। क्या तुम मेरा जलवा देखकर हक की आवाज़ को मानोगे? उमर दरवेश ने पूछा। हाँ, उन 3 आदमियों में से एक ने कहा। जाओ। उमर दरवेश ने ज़मीन पर गुस्से से हाथ मार कर कहा, चले जाओ। उस वक्त आना जब सूरज अपने शोले पहाड़ों के पीछे ले जाएगा और आसमान पर सितारों की कंदीलें रोशन हो जाएंगी। जाओ। लोग जब वापस गए तो उनके दिलों में कोई शक नहीं था। जाते जाते वो 4-4, 5-5 की टोलियों में हो गए। इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ उभर रहीं, अकीदे दब गए, जज्बे सर्द हो गए, जज्बात भड़क उठे। उन लोगों में से अगर किसी ने शक का इजहार किया तो किसी न किसी ने कह दिया, क्या तुम पानी को आग लगा सकते हो? ये वो मुसलमान थे जिन्होंने सूडान की गैर मुस्लिम शहनशाही को खौफजदा कर रखा था। सूडान की फ़ौजों को उन्होंने इस पहाड़ी खित्ते में बेबस करके पसपा कर दिया था। सूडान के बशिंदे होते हुए वो अपने कोस्तानी खित्ते को
आज़ाद इस्लामी रियासत कहते थे, मगर अल्फाज की सनसनी और चाशनी और वजद अफरीनी ने उन्हें राह से बेराह कर दिया और उनकी सोचें भटकने लगीं। जिन्होंने फ़ौजों को पसपा किया था, उनके अकीदे पर सिर्फ एक इंसान ने दिलकश वार किया तो उनके हथियार गिर पड़े। ये लोग जिधर गए अफवाहें फैलाते गए। उन्होंने जो देखा और जो सुना था उसे और ज़्यादा दिलनशीन बनाने के लिए इजाफे करते गए। मुझे ये खदशा परेशान कर रहा है कि सूडानी मुसलमान सनसनी खेज़ तहमात के आगे हथियार डाल देंगे। ये आवाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की थी, जो सूडान से दूर, बहुत ही दूर, फ़लस्तीन की दहलीज पर एक चट्टान के दामन में अपने मुशीरों और सलारों के दरमियान बैठा था। आदल का भेजा हुआ कासिद उसके पास पहुंच गया था। उसने आदल का पैगाम पढ़ लिया था। मिस्र की इंटेलिजेंस ने सूडानी मुसलमानों के हकूक़ की पूरी तरह मिस्र के कायम मकाम अमीर आदल को दी थी, जो आदल ने सुल्तान अयूबी के नाम एक पैगाम में लिख कर भेजी थी। उसमें यह भी लिखा था कि अली बिन सुफियान ताजरों के भेस में सूडान जा रहा है। पैगाम में आदल ने सुल्तान अयूबी से पूछा था कि सूडानी मुसलमानों के पहाड़ी खित्ते में अपने छापामार भेजे जाएं या नहीं। उसने इस खदशे का इजहार भी किया था कि हम छापामार चोरी छुपे भेजेंगे। अगर सूडानी हुकूमत को पता चल गया तो खुली जंग हो सकती है, जबकि हमारी ज़्यादातर फ़ौज अरब में लड़ रही है। पैगाम में तफसील से लिखा गया था कि सूडानी हुकूमत मुसलमानों को अपना वफादार बनाने के लिए हमारे जंगी कैदियों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। सुल्तान अयूबी ने यह पैगाम पढ़कर अपने हाई कमांड के सलारों और मुशीरों को सुनाया और कहा कि सूडान के ये मुसलमान सूडान की फ़ौज के लिए कह रही हैं। तुम सब देख रहे हो कि उनमें जितने हमारी फ़ौज में हैं वो किस बेजिगरी और जज्बे से लड़ते हैं, मगर दुश्मन जब उन्हें तिलस्माती अल्फाज में उलझाता और जहन की ख्याली अयाशी की तरफ मैल करता है तो वो रेत के बुत बन जाते हैं। आदल ने लिखा तो नहीं कि सलेबी सूडान के मुसलमान इलाके में किरदार कुशी और जहनी तकरीब कारी कर रहे हैं, लेकिन तुम सब सलेबियों को जानते हो, वो इस फ़न के माहिर हैं। मुझे मालूम है कि सूडानियों के पास सलेबी मशीर मौजूद हैं, वो जहनी तकरीब कारी ज़रूर करेंगे। सुल्तान अयूबी ने आदल के कासिद को खाने और आराम के लिए भेज दिया और कातिब को बुलाकर पैगाम का जवाब लिखवाने लगा। उसने लिखवाया, मेरे अजीज़ भाई आदल, खुदा अज़्ज़ा वजल तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुम्हारे पैगाम ने सूडान के मुसलमानों के मुतालिक सूरत हाल वाज़े कर दी है। तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि कुफ़ार इस्लाम का ख़त्मा चाहते हैं। वो हर हरबा और हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस इक़दाम की तारीफ़ करता हूँ कि अली बिन सुफियान सूडान चला गया है और तुमने उसे जाने की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला अली बिन सुफियान की मदद करे। वो निहायत होशियार और मुस्तैद सुराग रसां है, पत्थरों के अंदर से भीत भी निकाल लाता है। वो वापस आकर तुम्हें बताएगा कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तुमने मुझसे पूछा है कि सूडान के मुसलमानों को छापा मारों की मदद दी जाए या नहीं। तुमने इस खतरे का इजहार भी किया है कि छापा मार भेजे तो सूडानी जवाबी कार्रवाई करेंगे, जो खुली जंग की भी सूरत इख्तियार कर सकती है। तुमने अच्छा किया है कि मेरी इजाज़त ज़रूरी समझी है, लेकिन मैं तुम्हें ख़बरदार करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कभी हालात हंगामी हो जाएं तो मेरी इजाज़त लेने में वक्त ज़ाय ना करना। तुम्हें यह मालूम हो गया था कि सूडान के कैद खाने के एक सिपाही सूडानी फ़ौज के 2 कमांडरों को कत्ल करके मुसलमानों के यहाँ पनाह लिए और इस्लाम कबूल कर लिया है। और तुम्हें यह भी मालूम हो गया था कि सूडानी हमारे कैदियों को हमारे खिलाफ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे इसहाक नामी एक कमांडर की बीवी और बेटी तक को उन्होंने धोखे से अगवा करने की कोशिश की है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि सूडानी मुसलमानों में कुछ गद्दार भी हैं। इन हालात में तुम्हें फौरी तौर पर छापा मारों की कुछ नफरी ताजरों और मुसाफरों के भेस में सूडानी सरहद में दखल कर देनी चाहिए थी। ताहम अली बिन सुफियान का चले जाना काबिल तारीफ़ है। मेरे अजीज़ भाई, ये अलग मसला है कि हमारे पास फ़ौज थोड़ी है और हम दूसरा महाज खोलने के काबिल नहीं हैं, लेकिन कुरान के इस फरमान से गुरेज ना करो कि किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर कुफ़ार जुल्म व तशद्दुद कर रहे हों या उन्हें लालच से या धोखे से अकीदों से गुमराह कर रहे हों और उनका कौमी वक़ार और दीन और ईमान ख़तरे में डाल दिया गया हो, तो तमाम दुनिया के मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज हो जाता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं है। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम किसी भी मुल्क की सरहद में दाखिल हो सकते हैं। तुम जानते हो कि हमने सूडानी मुसलमानों को अपने छापा मार दे रखे हैं, जो उनके साथ काश्तकारों के रूप में रहते हैं। हम सूडानी मुसलमानों को जंगी सामान भी दे चुके हैं। अगर तुम ज़रूरत महसूस करो तो उन्हें और ज़्यादा मदद दो। नाजरीन, जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह पैगाम कासिद को देकर रवाना किया, उस वक्त उमर दरवेश के खेमे में वो 3 आदमी बैठे हुए थे, जो लोगों के हजूम में आगे होकर उमर दरवेश की तरफ बढ़े थे, मगर इस तरह पीछे को गिरे थे
जैसे किसी ने उन्हें आगे से धक्का दिया हो। लोग चले गए। उमर दरवेश बाहर से उठकर खेमे के अंदर चला गया था और ये 3 आदमी कुछ दूर तक लोगों के साथ गए और उनकी नज़र बचाकर एक एक करके वापस आए और उमर दरवेश के खेमे में चले गए थे। ये उसी गिरोह के आदमी थे और वो उसी इलाके के मुसलमान थे। सूडानी हुकूमत से उन्हें बहुत इनाम मिलता था। मेरा ख्याल था कि कपड़ा नहीं जलेगा, उमर दरवेश ने कहा। उसके नीचे आतिशगीर सियाल कम रखा गया और ऊपर पानी ज़्यादा उंडेल दिया गया था। तुम्हें अभी यह मालूम नहीं हुआ कि यह तेल पानी पर डाल दिया जाए तो भी तेल जल उठता है, उस आदमी ने कहा जिसने कपड़े पर मशकीज़े से पानी छिड़का था। हम पहले आजमा चुके थे, लोगों पर इसका क्या असर हुआ है? उमर दरवेश ने पूछा। हम कुछ दूर तक उनके साथ गए थे, एक ने जवाब दिया। कोई यकीन नहीं करता था कि दुनिया का कोई इंसान पानी को आग लगा सकता है। तुमने जिस अंदाज से बातें की हैं वो उनके दिलों में उतर गई हैं। सब इंतज़ाम तैयार है, एक आदमी ने कहा। तुमने हमारा कमाल देख लिया है, देखा हम किस तरह पीछे को गिरे थे, और तुम इसकी भी तारीफ करो कि हमने किसी और को बोलने नहीं दिया। रात को तुम फिर एक जलवा दिखाओगे, एक और आदमी ने कहा। याद कर लो कि तुम्हें क्या करना है। हमारे आदमी तैयार हैं। वो तीनों चले गए। सूरज गरूब होते ही लोग आना शुरू हो गए। दिन के वक्त जो लोग उमर दरवेश की बातें सुन गए, उन्होंने जहाँ तक वो पहुँच सके खुदा के एलची की तशहीर कर दी थी कि आज रात को उमर दरवेश फिर एक जलवा दिखाएगा। सूडान के जासूस भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अफवाहें फैलाने का काम जान फिशानी से किया। इसके नतीजे में शाम के बाद उमर दरवेश के खेमे के सामने लोगों का हजूम दिन की निस्बत ज़्यादा था। खेमे के हक़ में और दाएं बाएं किसी को खड़ा होने की इजाज़त न थी। उमर दरवेश अभी खेमे में था। बाहर 2 मशालें जल रही थीं जिनके डंडे ज़मीन में गड़े हुए थे। लोग खुदा के एलची को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। खेमे के पर्दे को जुम्बश हुई। आशी सामने आई। उसका लिबास सियाह था। उस पर अबरक के जरे चिपके हुए थे जो मशालों की रोशनी में सितारों की तरह टिमटिमाते और चमकते थे। पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले इन लोगों के लिए यह लड़की, उसकी चाल और उसका लिबास अजूबे से कम न था। आशी के एक हाथ में गज लंबे और उससे आधे चौड़े कलीन का एक टुकड़ा था जो उसने मशालों के दरमियान बिछा दिया। उसने दोनों बाजू फैलाए और आसमान की तरफ देखा। खेमे का पर्दा हटा और उमर दरवेश मस्ताना चाल चलता कलीन पर खड़ा हो गया। उसने भी आशी की तरफ बाजू दाएं में फैलाए, आसमान की तरफ देखा और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। अय खुदा की बरगुज़ीदा हस्ती, जिसका एहतराम हम सब पर फ़र्ज है, हम तेरे हुजूर हाजिर हुए हैं। ये उन 3 आदमियों में से एक था जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है। उसने कहा, तेरी दिन की बातें हमारे दिलों में उतर गई हैं, मगर एक शक है, हमें जलवा दिखा जिसका तूने वादा किया था। मिस्र फ़िरौनों का मुल्क है, उमर दरवेश ने बुलंद आवाज़ से कहा। फ़िरौन मर गए मगर खुदा ने मिस्र की बादशाही जिसको भी दी वो फ़िरौन बना। यह मिस्र की ज़मीन की, मिस्र के पानी की और मिस्र की हवा की तासीर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौनों की खुदाई को ललकारा और नील के पानी को काट कर दिखा दिया। अब मिस्र एक बार फिर फ़िरौनों के कब्ज़े में आ गया है। उमर दरवेश ने लपेट कर एक मशाल ज़मीन से उखाड़ी। रात तारीख हो चुकी थी। पहाड़, चट्टानें और दरख्त अंधेरे की स्याही में रिपोश हो गए। रोशनी सिर्फ उन मशालों के शोलों की थी जिसमें उमर दरवेश और आशी नजर आ रहे थे। उमर दरवेश ने मशाल ऊपर की और एक सिमत इशारा करके कहा, उधर देखो, उधर एक पहाड़ी है। तुम उस पहाड़ी को नहीं देख सकते, उसका जलवा देखो। उसने मशाल और ज़्यादा ऊपर करके दाएं बाएं लहराई। इसके साथ ही सामने पहाड़ी से एक शोला उठा और ज़रा सी देर में कम होते हुए ख़त्म हो गया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हैरत ज़दगी ने उनकी ज़बानें गंग कर दी। अगर तुमने इस जलवे को भी अपने दिलों में ना उतारा तो यह शोला जो तुमने देखा है तुम्हारे इस सरसब्ज इलाके को रोगजार बना देगा। उमर दरवेश ने कहा, मैं उसे रोक नहीं सकूंगा, उसे तुमने दावत दी है। उमर दरवेश अपने खेमे में चला गया। आशी ने लोगों को इशारा किया कि वो चले जाएं। लोग वहां से जाने लगे तो एक दूसरे के साथ बातें करते हुए भी घबराते थे। उनके दिलों में कोई शक नहीं रहा था। वो जब खेमे से दूर निकल गए तो एक आदमी जो उनके साथ था दौड़कर आगे हुआ और सब की तरह मुंह करके रुक गया। सब ने देखा वो एक गांव की मस्जिद का पेश इमाम था। ज़रा रुक जाओ, इमाम ने बाजू फैलाकर कहा। सब रुक गए तो उसने कहा, अपने ईमान को काबू में रखो मुसलमानों, यह जादूगरी है, जो तुम देख रहे हो ये शोबदाबाजी है। खुदा ऐसे गुनाहगारों को जलवे और नूर नहीं दिखाया करता जो अपने साथ बेहिया लड़कियां लिए फिरते हैं। मुसलमानों, अपने अकीदे की हिफाजत करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़िरौन नहीं,
وہ خدا کا سچا بندہ ہے، وہ تمہارے مذہب کا پاسبان اور صلیب کا دشمن ہے۔ محترم امام، ایک آدمی نے کہا، کیا آپ پانی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ اس کی نہ سنو۔ ایک اور نے کہا، یہ اپنی امامت قائم رکھنا چاہتا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ دکھا دیں۔ ایک اور نے کہا، پھر ہم آپ کی اطاعت قبول کریں گے، میرے ساتھ اس پہاڑی پر چلو جہاں سے شعلہ اٹھا تھا۔ امام نے کہا، میں تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ کیا شعبدہ ہے، اگر میں غلط ہوا تو مجھے اسی جگہ قتل کر دینا جہاں شعلہ بھڑکا تھا۔ 2-3 آدمی بیک وقت بول پڑے، وہ بھی امام کے خلاف بول رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتعال دلایا کہ سب چل پڑے اور امام کو دھکے دیتے آگے چلے گئے۔ امام اکیلا کھڑا تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر امام اس پہاڑی کی طرف چل پڑا جس پر شعلہ اٹھا تھا۔ وہ بہت ہی تیز چلا جا رہا تھا۔ ایک پتھریلے ویرانے سے گزر کر چٹان کے دامن میں پہنچا تو 2 آدمی اس سے کچھ پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ امام چٹان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا، پیچھے جانے والے دونوں اور تیز ہو گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹیں سن کر امام رک گیا۔ وہ دونوں اس کے قریب جا رکے، ان کے چہرے کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ امام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک امام کے پیچھے چلا گیا۔ امام اس کی طرف مڑا تو دوسرے نے امام کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ امام نے کمر بند سے خنجر نکالا، مگر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک آدمی کے ہاتھ کے شکنجے میں آ گیا۔ اس کی گردن دوسرے آدمی کے بازو کے شکنجے میں تھی، جو اتنا تنگ اور سخت ہو گیا کہ اس کا سانس رک رہا تھا۔ اس نے آزاد ہونے کی آخری کوشش کی۔ وہ پوری طاقت سے اچھلا، دونوں پاؤں جوڑ کر سامنے والے کے پیٹ میں مارے۔ اسے پیچھے سے ایک آدمی نے جکڑ رکھا تھا۔ سامنے والا امام کی لاتوں سے پیچھے کو گرا اور اس کے پیچھے والا دھکا برداشت نہیں کر سکا، وہ بھی پیچھے کو گرا اور امام کی گردن پر اس کے بازو کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ امام نے ایک اور جھٹکا دیا اور آزاد ہو گیا۔ وہ اب ایک خون ریز لڑائی کے لیے تیار ہو کر اٹھا، لیکن وہ دونوں آدمی بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں اسی علاقے کے مسلمان تھے، انہیں پہچانے جانے کا خطرہ تھا۔ امام نے انہیں پکارا، للکارا، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے۔ امام نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔